again welcome you all on my Easy Chemistry channel, and let us move forward in electrochemistry. Okay, in the last video we have seen about the conductivity and the molar conductance, and also the relationship between the conductivity and the molar conductance. Okay, now we are going to see the variations, how these molar conductivity or the conductance or the conductivity or the specific conductance, how do these change with the change in the concentration. Okay, so that we are going to see in today's video. So let us start with today's video. Now, up till now we are acquainted with the terms. What do we mean by conductance? What do we mean by the molar conductance? What do we mean by the conductivity or the specific conductance? So, using all these, try to relate this with the variations, how they are going to vary with the concentrations. Okay. Now, we know that conductance and the specific conductance, or we called it as the conductivity, and the molar conductance. Okay, we all know this. Now let us see what will happen if we are going to dilute the solutions. What will happen to the conductance, what will happen to the specific conductance, and what will happen to the molar conductance. Now first of all, what do I mean by the word dilution? Dilution means what? To make the solution less concentrated. आपने solution ले लिया, आप उसमें कोई एक particular concentration का आपने solution ले लिया, आपने उसमें water add कर दिया, means what? You have diluted the solution. So when we are going to dilute the solution, what will be the effect on these type of all the three these types of conductors? Let us see that. Okay, so for that I'm again going to consider a container having some electrolytic solution. Okay, and in this conductance, in this solution, I am keeping two plates, okay, which are nothing but my conductors. Okay, they are which are connected to the positive and the negative terminal of the battery. Okay, now these conductors, okay, what will happen when we are going to study? What will happen when we are going to dilute this solution? Okay, now suppose the solution is up till this much. Let me extend this container so that I can dilute the solution. Okay. Okay. So, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अगर मेरा ये solution है, इसमें मेरा ये पूरा ions present है, जो भी ions present है, ये मेरा solution है. Okay. Now सबसे पहले हम देखेंगे conductance. Conductance मतलब क्या? इस पूरे सोल्यूशन में जो आयंस है, आयंस मतलब यहाँ पर हमारे काम करने वाले लोग, ठीक है. आई एम गोइंग टू डिफाइन इट एज द वर्किंग पर्सन्स. ठीक है. अब इस पूरे लॉट में जो वर्किंग पर्सन्स है, मतलब जो आयंस है, जो हमारा काम करने वाले, कौन सा काम करने वाले हैं? करंट कैरी करेगा. तो ये जो करंट कैरी करने वाले, जो हमारे काम करने वाले जो आयंस है, ये क्या कर रहे हैं? ये मूव हो रहे हैं. जो निगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव आयंस निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, और ये अपना काम कर रहे हैं टू कैरी द करंट. अब ये जब करंट कैरी कर रहे हैं कंडक्टर्स, तो क्या होगा? अब यहाँ पर जब हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम क्या, इस पूरे सोल्यूशन में जितने भी आयंस है और वो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्टेंस, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी. ओके. अब अगर इस सोल्यूशन में को मैं डाइल्यूट कर देती हूँ, मतलब मैंने क्या किया? इस सोल्यूशन का सपोज मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वाटर ऐड कर दिया, और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम मेरा बढ़ गया. तो अब ये जो कंडक्टेंस है, उस पे क्या फर्क पड़ेगा? लेट अस सी दैट. ओके. अब जब हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने सोल्यूशन को डाइल्यूट किया, मतलब मैंने जब डाइल्यूशन किया तब क्या होगा कि जैसे ही मैंने डाइल्यूट किया, मतलब मैंने क्या किया है? इस वन वे रोड को टू वे रोड बना दिया. ठीक है. हम फिलहाल इसको कंसिडर करते हैं कि ये मेरा एक वन वे रोड था, जिसमें कुछ वर्कर्स जो है वो काम कर रहे थे. कुछ यहाँ से सामान यहाँ लेके जा रहे हैं और कुछ यहाँ से सामान यहाँ लेके आ रहे हैं. ओके. ये है मेरे वर्किंग, जो आयंस है वो मेरे वर्किंग पर्सन्स. अब ये क्या कर रहे हैं? इस वन वे रोड पे काम कर रहे हैं. ठीक है. अब जाते जाते वक्त क्या हो रहा है? ये आयंस की पहचान का ये आयंस मिल गया, ये दोनों ने मिलके, ये दोनों वर्कर ने मिलके बातें करनी शुरू कर दी.
बातें करने की वजह से क्या हो गया, काम में डिले हो गया। मतलब जो कंडक्टेंस का काम था, जो आयंस कैरी करने का काम था, वो स्लो हो गया और कंडक्टेंस हमारा कम हो गया। अब इस तरह से क्या होगा, बीच में आयन इंटरफेरेंस आएंगे, या फिर अब सिंस इतनी सी जगह है, काम करने वाले लोग ज्यादा है, तो वो एक में से टकराएंगे। मतलब यहाँ क्या होगा, देयर विल बी एन आयन इंटरफेरेंस। पर जैसे ही मैं डाइल्यूशन करती हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने डाइल्यूशन किया, तो मेरा ये जो वन वे रोड था अब टू वे रोड बन गया, बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया। सोल्यूशन में स्पेस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। नंबर ऑफ आयंस अभी भी उतने ही हैं, जो काम करने वाले आयंस है, जो वर्कर्स है मेरे, वो आज भी उतने ही है। बस क्या हो गया, यहाँ पे स्पेस बढ़ गई। मतलब काम करने के लिए जो स्पेस हम प्रोवाइड कर रहे थे वो अब हमारी बढ़ गई। अब ये बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो इंटरफेरेंस पहले हो रहा था, जो आयंस एक में से इंटरफेयर कर रहे थे, एक में से बातें करने में टाइम वेस्ट कर रहे थे बोलो, या एक में से टकरा रहे थे, या जो भी उनको स्पेस की जो कमी हो रही थी उसकी वजह से जो हो रहा था वो अब क्या हो जाएगा, कम। मतलब ऑन डाइल्यूशन क्या हो गया, आयन इंटरफियरेंस। मतलब जो एक में आयन इंटरफियर कर रहे थे, या जो पॉजिटिव आयन जब जा रहे थे दूसरी तरफ से निगेटिव आयन उनको अट्रैक्ट कर रहे थे, ये आयन इंटरफियरेंस क्या हो गया है, इट हैज डिक्रीज। आयन इंटरफियरेंस डिक्रीज हो गया। तो अब ये जो आयंस की मूव होने की कैपेसिटी है, आप जो इधर से उधर जाने की कैपेसिटी, जब हमारा वन वे रोड होता है तो ट्रैफिक जैम होने के चांसेस होते हैं, बट टू वे रोड हो जाने से क्या हो जाता है, यहाँ से सब लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ के सब लोग एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या हो जाती है, मोबिलिटी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी सिंस ऑन डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, आयन मोबिलिटी इंक्रीजेस, आयन इंटरफेरेंस कम हो जाएगा एंड आयन मोबिलिटी विल इंक्रीज। ओके, अब अगर आयन मोबिलिटी इंक्रीज हो गई मतलब क्या हो गया, आयन इजीली फास्ट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो रहे हैं। यस, पॉजिटिव वाले निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया है कि हमारा काम बढ़ गया है, काम बढ़ गया। और यहाँ काम हम कौन सा कर रहे थे, कंडक्टेंस का। मीन्स इन दिस केस द कंडक्टेंस हैज इंक्रीज्ड, सो the conductance increases on dilution. So we can write it here that the conductance increases on dilution, on dilution. ठीक है, अब हम यही चीज स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, सेकेंड है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे देखते हैं क्या होता है। अब वी नो दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या है, इट इज द कंडक्टेंस फॉर 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर ये मेरी जो प्लेट्स है वो 1 सेंटीमीटर है और ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जो मेरा ये जो क्यूब फॉर्म होगा, ये मेरा एक ऐसा क्यूब बन जाएगा, है ना, और ये क्यूब का वॉल्यूम कितना रहेगा, 1 ml। तो अब ये जो 1 ml है, इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विच इज डिनोटेड बाय K। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है डाइल्यूशन के ऊपर। ठीक है, अब जब क्वांटिटी सिर्फ इतनी थी, मतलब हम फिलहाल इसको निग्लेक्ट करते हैं कि हमने डाइल्यूशन नहीं किया। अब जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरा जब सोल्यूशन सपोज इतना ही था, ठीक है, ये जो भी मेरा VmL का सोल्यूशन है, इसको मैं फिलहाल VmL बोल देती हूँ, V1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा सोल्यूशन V1 ml है, तब क्या हो रहा है कि मैं अब क्या कर रही हूँ, इस पूरे सोल्यूशन में से सिर्फ एक छोटा सा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और द क्यूब जितना पार्ट, 1 क्यूब जितना पार्ट ले रही हूँ, और उतने क्यूब में जितने आयंस प्रेजेंट है, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर ये जो सोल्यूशन है उसमें अगर 1 ml की मैं बात करूं, ये छोटा सा क्यूब ले लूं, इस छोटे से क्यूब के अंदर जितने भी आयंस है, तो यहाँ पर सपोज अगर पहले 5 आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, 5 नहीं ले लेते, इक्वल ले लेते, 6 ले लेते, मतलब 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, ऐसे 6 आयंस प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं करंट यहाँ से वहां, और इनकी वजह से जो भी कंडक्टेंस हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इस सोल्यूशन को मैंने डाइल्यूट कर दिया, मीन्स व्हाट, अब मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, V1 से अब मैंने ये वॉल्यूम जो है वो V2 कर लिया है। अब इस V2 वॉल्यूम में जैसे ही स्पेस बढ़ेगी तो आयंस के बीच में का जो डिस्टेंस है, जितने भी आयंस प्रेजेंट है पूरे सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में जितने भी आयंस है वो क्या हो जाएंगे, दे विल मूव अपार्ट, क्योंकि अब उनके पास बड़ा वॉल्यूम है, बड़ी स्पेस है, तो वो इधर उधर जहां उनको कंफर्टेबल है वो मूव करेंगे। तो अब ये मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पर 6 आयंस पहले इतनी एरिया में रहते थे, अब वो 6 आयंस रहेंगे क्या,
नहीं, वहां क्या हो जाएंगे, आयंस का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ गया। डाइल्यूशन की वजह से बड़ी सी स्पेस मिल गई। पहले एक छोटे से रूम में 4 लोग रह रहे थे, ठीक है, अब इतना बड़ा घर हो गया है तो क्या एक ही रूम में 4 लोग रहेंगे क्या, नहीं, दे विल स्प्लिट आउट, इधर उधर जाएंगे वो सब जगह, उनके पास बहुत बड़ी स्पेस है यूज करने के लिए। तो अब ये अगर जैसे ही मैंने डाइल्यूशन किया, मतलब क्या हो गया, ऑन डाइल्यूशन इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो गया है कि नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml of solution, 1 ml of solution डिक्रीज हो जाएंगे, है ना, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहाँ 6 थे पहले, अब शायद 2 ही लोग यहाँ रहेंगे, मीन्स नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया, कम हो गया। और अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गया, नंबर ऑफ आयंस कम होना मतलब क्या होना, कि हमारे काम करने वाले लोगों की कमी हो जाना, क्योंकि हमें तो कंडक्टेंस इतने ही वॉल्यूम में गिनना है। तो अब इतने से वॉल्यूम में अगर वर्किंग जो आयंस है, हमारे जो भी आयंस थे, एक्टिव आयंस जो है, वो अगर कम हो जा रहे हैं, मतलब हमारा क्या हो रहा है, कंडक्टेंस भी कम हो जाता है, कंडक्टेंस डिक्रीजेस। मतलब ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या हो रहा है, व्हेन वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। Now let us move to the third point, that is the molar conductance. अब molar conductance का डाइल्यूशन पे क्या असर होता है देखते हैं। अब मोलार कंडक्टेंस मतलब क्या, कंडक्टेंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सोल्यूशन। मतलब अगर मैंने सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल लिया है, तो इस 1 मोल सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में जितना भी कंडक्टेंस होगा, जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे काम करने वाले, वो जो भी काम कर रहे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मोलार कंडक्टेंस। तो अब अगर ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हमने ले लिया है, सपोज 2 मोल्स का ये सोल्यूशन है, फिलहाल हम इसको 2 मोलार वाला सोल्यूशन कंसिडर करते हैं। तो अब अगर ये 2 मोलार वाला सोल्यूशन है, मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ कंडक्टेंस कितने इसमें चाहिए, 1 मोलार में, मतलब इसके आधे में चाहिए। तो अगर मैं इसको, सपोज मैंने इसको आधे में डिवाइड कर दिया, ठीक है, किसी तरह से ऐसे डिवाइड कर दिया, बट ये जो दोनों प्लेट्स है वो एक ही तरफ रहेंगी, मैंने इस सोल्यूशन को आधे में डिवाइड कर दिया। अब आधा सोल्यूशन मैंने ले लिया, मतलब क्या हो गया, मेरा 1 मोलार सोल्यूशन हो गया। अब उस आधे 1 मोलार सोल्यूशन में जो भी कंडक्टेंस रहा होगा उसको हम बोलेंगे मोलार कंडक्टेंस। अब इस मोलार कंडक्टेंस में, मतलब उस सोल्यूशन को मैंने अगर डाइल्यूट किया, मुझे देखना क्या है कि डाइल्यूशन पर क्या होता है। तो अगर मैंने इसे डाइल्यूट कर दिया तो फिर से वही चीज हो जाएगी जो कंडक्टेंस में हुई थी, कि जब मैं इसको डाइल्यूट करूंगी, ऑन डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगी। मोलार कंडक्टेंस हम आधे इसमें ले रहे हैं, ठीक है, आधे इसमें से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ गई, मतलब जो आयन इंटरफेरेंस था, आयन इंटरफेरेंस क्या हो गया, फिर से कम हो गया, आयन इंटरफेरेंस डिक्रीज। और अगर आयन इंटरफेरेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आयंस इजीली मूव कर पाएंगे, देयरफॉर आयन मोबिलिटी इंक्रीजेस। और अगर आयन मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारा मोलार कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स द मोलार कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो ये हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, एंड द मोलार कंडक्टेंस ऑल्सो, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, और ये भी क्या है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ओके, अब इस पूरे चैप्टर में वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ओवर द कंडक्टेंस और द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बट हमें किस पे ध्यान देना है, मोलार कंडक्टेंस पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब मैंने जैसे आपको बताया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कोई काम का नहीं है जब हम कंडक्टिविटी सॉल्यूशंस की ले रहे हैं, क्योंकि जब हम कंडक्टिविटी सॉल्यूशंस की ले रहे हैं तो अलग अलग टाइप के कॉन्सेंट्रेशन अगर सोल्यूशन का है तो कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें करेक्ट कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं दे सकता। इसलिए हम जब भी पढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आउट द मोलार कंडक्टेंस। सो जो हमें प्रॉपर उतने पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में किस टाइप का सोल्यूशन है, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेदर इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको कंसिडर करते हुए वो हमें कंडक्टेंस बताता है, एंड हेंस इट इज मोर स्पेसिफिक, और हेंस वी आर गोइंग टू यूज द मोलार कंडक्टेंस टू कैलकुलेट आउट द कंडक्टिविटी फॉर अ सोल्यूशन। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि हमने क्या बोला कि मोलार कंडक्टेंस, अब हम सिर्फ मोलार कंडक्टेंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमने क्या बोला कि मोलार कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, मतलब मैंने डाइल्यूट किया, कंडक्टेंस बढ़ा,
और डाइल्यूट किया कंडक्टेंस बढ़ा, और डाइल्यूट किया कंडक्टेंस बढ़ा। पर क्या ये प्रोसेस चलती रहेगी? मैं कितना भी डाइल्यूट करूं तब भी सोल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ता ही जाएगा? वेदर यस और नो? यस, नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर किसी की एक लिमिट होती है। टू एक्सप्लेन दिस आई कंसिडर वन सिंपल एग्जाम्पल। केक्स, ब्लैक फॉरेस्ट केक सबने खाया होगा। ये पेस्ट्रीज जो हम खाते हैं वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। डू यू नो व्हाई डज इट बिकम सो सॉफ्ट? बिकॉज दे ऐड द वाटर सिरप इन इट। ठीक है, जो केक बनता है, हमारा नॉर्मल केक बनता है, उसी में क्या करते हैं ये लोग? वाटर सिरप ऐड करते हैं टू मेक इट अ सॉफ्टर। अब अगर इसी को हमने क्या किया, थोड़ा सा वाटर ऐड किया, मेरा केक थोड़ा सॉफ्ट हुआ। मैंने और वाटर ऐड किया, मतलब मैं क्या कर रही हूँ? डाइल्यूशन कर रही हूँ। ओके, वाटर ऐड किया और थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अगेन आई एम एडिंग सम वाटर और सॉफ्ट हो गया। तो मैं ये जो प्रोसेस है डाइल्यूशन का, मैंने कंटिन्यू किया। ठीक है, वो सॉफ्ट 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 होता गया। बट एक टाइम के बाद जब उस केक की, उस स्पंज की कैपेसिटी फुल हो गई, ठीक है, उसके बाद अब वो और वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसके पास और वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी मैंने क्या किया? और डाइल्यूशन कर दिया। तो अब मेरा केक क्या हो जाएगा? पूरा टूट के चूरा फूरा हो जाएगा। मतलब जहां से मैंने शुरू किया था वो फिर से वो वैसा ही बैटर बन जाएगा, पूरा पानी पानी। यस, जहां से मैं आई थी वह वही पहुंच गई। मतलब मैंने क्या पहुंच गई? जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ही पहुंच गई, कि जहां से मैंने शुरू किया था वही मैं वापस आ गई। तो ये क्या हो गई? ये जो मैक्सिमम लिमिट थी जिससे पहले तक करंट कंडक्ट हो रहा था, वो क्या है? मेरी मैक्सिमम वैल्यू। उसके ऊपर अगर मैं और ऐड करती जाती हूँ तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कंडक्टेंस। मतलब दिस डाइल्यूशन ऑल्सो हैज अ लिमिट, कि हम कितने टाइम तक उसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो हमें कंडक्टेंस बढ़ेगा, और एक लिमिट के बाद वो कंडक्टेंस बढ़ना बंद हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो नोन एज द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट हम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ मेजर नहीं कर रहे, हम बस क्या करते जा रहे हैं? डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ऐसा करते करते नंबर ऑफ स्टेप्स, इनफाइनाइट स्टेप्स हमने कर ली, तो उससे मोलार कंडक्टिविटी जो है वो एक लिमिट क्रॉस कर देगा। उसको हम क्या बोलेंगे? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसे ये भी कहा जाता है मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमने क्या किया? हम डाइल्यूट करते गए, डाइल्यूट करते गए, वाटर ऐड करते गए। अब इतने बड़े क्वांटिटी में, अगर आपने एक टैंक में एक स्पून आपने शक्कर का लिया था एक ग्लास में, ठीक है, आपका अच्छा मीठा था, देन आप उसको डाइल्यूट करते गए, आपने उसको 1 बकेट बना दी, तब क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड लगेगा? तब उसमें कोई स्वीटनेस रहेगी? नहीं। मीन्स व्हाट? अब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या बन गया है? जीरो। सो मोलार कॉन्सेंट्रेट कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या हम इसे कह सकते हैं मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी। इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम, इसके बाद कोई चांस नहीं है कंडक्टिविटी और बढ़ने का, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, मतलब लिमिट हो गई। अब इसके ऊपर और कितना भी डाइल्यूशन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम क्या करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। ओके, नाउ वी हैव टू सी दिस मोलार कंडक्टिविटी फॉर बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मोलार कंडक्टिविटी में हम जब आगे देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये मोलार कंडक्टिविटी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किस तरह से हम उसे निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला है, मतलब हम इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट तो नहीं करते रहेंगे, हमें उसको किस तरह से हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, दैट हाउ दिस लिमिटिंग वैल्यू और द value at zero concentration can be calculated out for the two types of solution with strong electrolyte and solution with weak electrolyte. Okay, so let us first see for the strong electrolyte. Okay, so let us move to the next topic, that is the molar conductivity at zero concentration for strong electrolyte. मतलब अब हमें क्या करना है? मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है जीरो कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज द weak electrolytes. First we'll concentrate on the strong electrolyte. Okay, कि किस तरह से हम कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अब मोलार कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? कंडक्टोमीटर से। ठीक है, अब सेटअप क्या होता है कि हम एक बीकर लेंगे, ठीक है, इस बीकर में हमारी सेल रहेगी, मतलब ये जो हमारे 2 प्लेट्स वाला जो कंडक्टर है वो होगी हमारी सेल, ये हमारी सेल डिप रहेगी, और इस सेल को कनेक्ट किया जाएगा
बैटरी से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। नाउ दिस सोल्यूशन, दिस बीकर कंटेन्स अ सोल्यूशन विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है? द वन विच डिसोसिएट्स और वन विच शोज 100% डिसोसिएशन। मतलब कि जो ऐसे कुछ सॉल्ट्स जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड ऑल द सॉल्ट्स, ये क्या करते हैं? ये 100% डिसोसिएट होते हैं। मतलब अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स NaCl के डाल रही हूँ वाटर में, तो मुझे क्या मिलेंगे? 10 Na+ आयंस एंड 10 Cl- आयंस। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स मैंने डाले सबके सब क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। एंड दीज आर कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और ऊपर से मैं एक पिपेट लगा देती हूँ टू ऐड द वाटर, सॉरी ब्यूरेट से मैं ऐड करती जाऊंगी वाटर, ठीक है। अब ये ब्यूरेट से मैंने इसमें वाटर ऐड करती गई ताकि मेरा इस सोल्यूशन का जो डाइल्यूशन है वो बढ़ता जाए। और अलग अलग डाइल्यूशन पे मैं क्या करूंगी? आई एम गोइंग टू कैलकुलेट आउट द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमीटर। इसको कंडक्टोमीटर से ज्वाइन किया जाता है। कंडक्टोमीटर हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू दिखाता है, ओके। तो अब ये जब है मोलर कंडक्टेंस हमें जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे अगर पता करना है, तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस सेटअप एंड बाय ड्रॉइंग अ ग्राफ between the under root of concentration versus the molar conductivity, okay, molar conductivity जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ, मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सिस पे ले लिया मोलर कंडक्टेंस। ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस एंड दिस इज माय ओरिजिन जीरो विथ जीरो। अब ये जो अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को मैं डाइल्यूशन भी बोल सकती हूँ, 1 डाइल्यूशन। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट 1/v और v इज नथिंग बट द वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब हमारा यहाँ डाइल्यूशन। तो अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन लू या 1/v लू, मतलब अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन लू, मेरी बात एक ही रहेगी। अब अगर मैं इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ले रही हूँ और 1/डाइल्यूशन ले रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ, मतलब इफ आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन माई कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। या 0 है, कॉन्सेंट्रेशन 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया एंड सो ऑन। एंड अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूं, तो मेरा जो डाइल्यूशन है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। मतलब डाइल्यूशन मेरा यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब डाइल्यूशन ज्यादा, डाइल्यूशन ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। मतलब यहाँ से यहाँ पे जब मूव हो रही हूँ तो मेरा डाइल्यूशन बढ़ रहा है, और मैं यहाँ से यहाँ मूव हो रही हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ओके। अब मैंने ये शुरू किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी मेरी कुछ मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, फिलहाल हम इसको ऐसे 1 2 3 4 ही ले रहे हैं, ठीक है, बट ये 0.00 वगैरह इस टाइप के टर्म्स में रहेगी। नाउ अब जैसे हम इसका जब हम इसका मोलर कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा कॉन्सेंट्रेशन सपोज 5 है, ठीक है, 5 मोल्स है, तो मेरा जो कंडक्टिविटी है, सपोज मुझे वो कंडक्टिविटी यहाँ मिल गई, ठीक है। देन मैंने डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और मेरा कंडक्टेंस बढ़ गया, मोलर कंडक्टिविटी मेरी बढ़ गई। और मैंने आगे डाइल्यूट किया, मुझे थर्ड कॉन्सेंट्रेशन पे मैंने लिया, मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ गई। इस तरह से ये जो पॉइंट्स है मेरे एक ही लाइन में आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे मैंने 5 से 6 डाइल्यूशंस कर लिए और मुझे अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए, ठीक है। अब ये पॉइंट्स मिलने के बाद इफ आई एम गोइंग टू ट्रेस अ लाइन विद दिस हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स, सिंस दिस ऑल द पॉइंट्स आर इन वन रो, सो इफ आई एम गोइंग टू एक्सटेंड दिस लाइन, तो ये लाइन क्या होगी? कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके मीट होगी। यस, ये मेरे पॉइंट्स यहाँ पर थे, मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरी लाइन कहाँ जाएगी? ये लाइन मेरी जहां पर भी इस लाइन पर इंटरसेक्ट होगी, ये क्या रहेगा मेरा? दिस विल बी द मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। और इसके बाद अगर मैं और भी अगर डाइल्यूशन करती हूँ तो देयर विल बी नो चेंज इन द कंडक्टेंस। इसके बाद कहीं पे भी चेंज कंडक्टेंस का हमें नहीं दिखेगा, मतलब कोई कंडक्टेंस बढ़ने वाला नहीं है। ये हो गई उसकी लिमिटिंग वैल्यू। मीन्स व्हाट? कि ये कॉन्सेंट्रेशन कम था, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो कंडक्टेंस की वैल्यू कम थी। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया, मतलब हमने डाइल्यूशन किया, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता गया और फिर
ये एक लिमिट क्रॉस हो गई, जब मतलब मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ उसका मतलब क्या है, ये क्या है मेरा जीरो, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मेरा ये जो मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट माय मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वी गेट अ ग्राफ ऑफ दिस टाइप. ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑलरेडी डन एंड इट हैज बीन proved that we get the points in this way for a strong electrolyte. But for a weak electrolyte, जब हम weak electrolyte की बात करते हैं, weak electrolyte मतलब कौन से electrolytes जो कि बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, which partially dissociates, मतलब कुछ ही प्रमाण में डिसोसिएट होते हैं. अगर मैंने 10 NaCl डाला है तो उसमें से एक आधी मॉलिक्यूल रहेगा जो हमारा, यहाँ पे हम NaCl नहीं लेते, एसिटिक एसिड ले लेते हैं. एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड विच इज ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो ये एसिटिक एसिड अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ अगर मैंने 100 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए तो उसमें से क्या रहेगा, 1 या 2 ही मिलेंगे. तो 2CH3COO माइनस एंड 2H प्लस, इस तरह से ये डिसोसिएशन वाटर में होगा. तो उसको हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो जब ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ऐसा इसी तरह का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, मोलार कंडक्टेंस वर्सेस द अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो जो हमें मिलता है वो ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता है. मतलब इसमें कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है. यहाँ पर जब कॉन्सेंट्रेशन हाई था तो कंडक्टेंस मेरा इतना कम था, कम ही रहा कंडक्टेंस, फिर बीच में एकदम से हाइट ले लिया, फिर से कांस्टेंट हो गया, फिर कहीं, तो आपको यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती जिससे आप इन्फर कर सको कि ये जो लाइन है ये जाकर कहाँ पर इंटरसेक्ट होगी. और अगर इंटरसेक्ट हो भी जाती है तो वो इट विल बी नॉट राइट, क्योंकि यहाँ पर एक ही जैसा पैटर्न नहीं है कि हम इसको एक्सटेंड कर दें उसी पैटर्न में. तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना इस मेथड से विल बी रॉन्ग. Okay, it cannot be calculated with the help of this method. And in order to get the value for the molar conductivity at zero concentration for the weak electrolyte, this scientist, जिसका हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, FWG Colrosh had given a law. FWG Colrosh ने एक लॉ दिया हुआ है which is known as the Colrosh law, and this Colrosh law helps us to find out the molar concentration at zero concentration for weak electrolyte. तो ये लॉ के यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मोलार कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना होगा, कौन से पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कितना होगा. दिस कैन बी कैलकुलेटेड आउट. Okay, so this Colrosh law I will be continuing in my next video. So do watch my next video to understand the concept of FWG Colrosh law. Okay, so for this video only this much. If you have any queries regarding any concept in this video, you may ask me in my comment box, and we'll meet in the next video. Till then, thank you. Bye bye.